Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय. Hare Krishna. So welcome to the fresh session on 13th chapter of Bhagavad Gita. भगवद गीता के 13वां अध्याय हम कर रहे हैं. Just give me 1 minute. इस अध्याय का नाम है नेचर एंजॉयर कॉन्शियसनेस, प्रकृति, भोक्ता और चेतना. And we have completed about 12 shlokas. So today we'll be completing the 12th shloka and moving ahead, if time permits, towards the 13th shloka and onwards. तो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? श्लोका 8 to 12 is a part where Krishna is talking about the process of knowledge. तो श्लोका 8 से 12 कृष्णा ज्ञान को प्राप्त करने का विधान क्या है, मार्ग क्या है, इसके बारे में वो बात कर रहे थे अर्जुन से. So we completed of the 20 factors that Krishna gives, which he says I consider as knowledge. 20 ऐसे विषयों के बारे में कृष्णा इस श्लोक में, इन 4 श्लोक में बता रहे हैं, 4-5 श्लोक में, कि ये 20 जो गतिविधियां हैं या गुण है, इसको प्राप्त करना और इससे आधारित जीवन को चलाना, ये ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है. एंड टू द एक्सटेंड दैट ही वेंट ऑन टू से दैट जो इस 20 विषयों के बारे में बात नहीं करेगा, मतलब इस 20 विषयों के विषयों से परा है, तो अज्ञान, वो अज्ञान है, चाहे वो कुछ भी हो. So we considered many things: humility, rightlessness, non-violence, ahimsa, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness. So बहुत एक हमने यहाँ तक कर लिया था. So in cleanliness we talked about how both internal and external cleanliness is talked about, and about steadiness, how one must be determined to progress in spiritual life. आध्यात्मिक प्रगति की ओर जाने के लिए तो हमें दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़ना है. So that is the meaning of steadiness, not the material steadiness that I am determined to achieve this. तो मैं चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं ये अचीव करूँ, and to put efforts for that. It is not that kind of steadiness that Krishna is talking about here. Krishna is talking about the higher knowledge. So today we are going to start with the discussion from false ego and onwards. तो अहंकार, इस विषय के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कृष्णा knowledge of what is ahankara and what is anahankara, that is real knowledge, and not having knowledge of this is agyan. So false ego means accepting body as oneself. तो false ego का मतलब क्या है? false ego का मतलब और अज्ञान का मतलब क्या है? इस देह को सब कुछ समझ लेना. To consider that this body is everything, and not so much as to worry or think about the spiritual side of us, that is the soul. So also to think about aham brahmasmi in a perverted way. So there's a very great phrase in Vedas में, Vedanta सूत्रों में aham brahmasmi. So
how important it is to take our education from a bona fide spiritual master. Because if we are not connected with a bona fide spiritual master, then many different meanings can be given to words that were meant to mean something else. तो अगर हम मार्गदर्शन एक अधिकृत गुरु से प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हम मार्ग से भटक जाएंगे, क्योंकि एक शब्द का अनेक अर्थ और विकृत अर्थ कोई भी दे सकता है। एंड वी शुड नेवर ट्राई टू स्पेक्युलेट। तो अपने बुद्धि से उसको कभी समझने की कोशिश हमें नहीं करना चाहिए। तो सम ऑफ यू माइट थिंक, तो प्रभु ने हमें तो बुद्धि दिया है, तो हमें तो बुद्धि से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। यस, ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सी बुद्धि की जरूरत है? ये बुद्धि की पता करना है कि कौन अधिकृत गुरु है। दिस इज द यूज ऑफ बुद्धि इन टर्म्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। व्हाट इज द यूज ऑफ बुद्धि? द यूज ऑफ बुद्धि इज टू अप्लाई इट, टू सर्च फॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर, टू नो द क्राइटेरियाज। क्या मापदंड है गुरु को पहचानने के लिए, ये जानना और उस गुरु को अन्वेषण करना। दैट इज द यूज ऑफ बुद्धि, ये बुद्धि का उपयोग है। तत्पश्चात जब गुरु के शरण में जाएंगे, अब यू ऑलरेडी फाउंड आउट दैट ये अधिकृत गुरु है, देन आफ्टर दैट देयर इज नो सेंस इन डाउटिंग हिम, देयर इज नो सेंस इन थिंकिंग that whatever is it telling, is it okay, is it true, is it required, क्या ये जो गुरु बोल रहा है क्या ये सब सही है, क्या ये सब हमें जीवन में चाहिए? तो ऐसा सोचना, फिर वो मतलब दैट इज विकृत बुद्धि। दैट इज यू ऑलरेडी सर्च्ड फॉर अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। इट्स लाइक डूइंग ऑल योर होमवर्क, और एक कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आपने, आपके पेरेंट्स ने सारे होमवर्क कर लिया, and so you zeroed in on one particular university and college, and you have made sure that this is a bona fide college. Now if you go and sit in that college and every moment doubt, he's telling like this, is it okay, मुझे अपना मतलब I have to find this out myself, इसका उत्तर मुझे खुद ढूंढना चाहिए। First of all, you're wasting your time. Second of all, you've gone to the right place and you're doubting the people who are bona fide professors in that institute. अगर वो bona fide institute है, अगर वो एक जाना माना इंस्टीट्यूट है, तो and if it has got reputed name, obviously they would have done all their homework to recruit good staff. तो उन्होंने सारे अपने मापदंड से अच्छे प्रोफेसर्स को चयन किए होंगे और उनको रिक्रूट किए होंगे। अब आप हर वक्त यही सोच रहे हैं ये प्रोफेसर ये पढ़ा रहा है, ये सही है कि नहीं, देखते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा रहे हैं, देखते हैं हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा रहे हैं, सब रास्ता भटक जाएंगे। दे में बी a bona fide process, this person may be bona fide, this university is bona fide, but you have taken admission in a particular university, so you must stick to that syllabus. तो आपको वे सिलेबस पढ़ना चाहिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। अव्यवसायिना मतलब बीज कहीं पे बो रहे हो और आप हल कहीं और चला रहे हो, पानी कहीं और दे रहे हो और मैन्योर कहीं और दे रहे हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू सेलेक्टेड अ पर्टिकुलर स्पॉट, तो उसमें बीज भी डालना है, वहां पे हल भी चलाना है, वहां पे पानी भी डालना है, वहां पे मैन्योर भी डालना है, फिर इंतजार भी करना है। You, for knowledge you can take the what is happening here, what is happening there, but again when we try to do it on our own we will get diversified, confusion में आ जाएंगे। यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं, यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं। गौड़िया मठ में बोलते हैं 64 माला करना है, इस्कॉन में 16 माला बोलते हैं। तो इस्कॉन में रहे, इफ यू आर देयर इन इस्कॉन, प्रभुपाद इज टेलिंग मिनिमम 16 नॉट्स। तो आपका मिनिमम क्या है? 16 नॉट्स। क्यों मिनिमम है? क्योंकि आपके गुरु ने आपको बताया है, नॉट फॉर एनी अदर
रीजन। तो इस्कॉन में जब हम रहेंगे, हरे कृष्णा मूवमेंट में जब हम रहेंगे, तो हमारा अधिकृत ज्ञान कहाँ से आ रहा है? श्रील प्रभुपाद जी से। तो उनके कहे हुए मार्ग से हमें जाना चाहिए। गौड़िया गौड़िया मठ में किसी ने एडमिशन ले लिया है, तो वहां पे 64 माला है, तो वहां जाके वो आर्ग्यू करेगा, श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को 16 माला बोल रहे हैं, आप यहाँ 64 माला बोल रहे हैं। So if you feel that is a better process, you are more convinced with what Prabhupada says, and you want to follow what Prabhupada says, you should come here and you should follow the instructions what is being told here. तो यहाँ का आप इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है। आपको गौड़िया मठ में रहना है, तो आपने एक चयन करके एक गुरु को चुना है वहां पे, मतलब एक गुरु के पास आप गए हो, फिर तर्क वितर्क हुआ है, फिर आपने माना है कि वो गुरु है, फिर ये कोई मतलब नहीं है कि आप वहां जाके क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे 64 वाला क्यों, यहाँ पे 16 वाला क्यों नहीं। So the time, place, circumstances. When Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was present, he presented 64 rounds. When Srila Prabhupada went to the Western world, he saw that 64 rounds will not be possible for these Westerners who are mlechas, yavanas. ये म्लेच्छ यावना जो पाश्चात्य देश वाले इसको 64 माला बोलेंगे, तो ये मे बी फ्यू पीपल विल बी एबल टू डू बिकॉज मैंने बोला है, लेकिन वो फिर बाकी कुछ और कुछ करेंगे ही नहीं। सो 64 माला करने के लिए दिन में कम से कम 8 घंटे चाहिए, इफ यू डू कंटिन्यूसली, तो बाकी तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो तो दिस पीपल आर नॉट इंक्लाइन टू चैंटिंग, इनका ये नहीं है, तो उन्होंने मिनिमम 16 राउंड बनाया। ये मिनिमम 16 राउंड क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हो गया, बाकी सब समय आपको भक्ति सेवा में आपको रहना है। दैट मीन यू मस्ट रिमेनिंग आवर्स यू मस्ट डू सर्विस। दिस इज द मीनिंग ऑफ आपका मिनिमम 16 राउंड है। मतलब दिन में आपको 8 घंटे या 10 घंटे आपको भक्ति में प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस में रहना है। उसमें आप 16 माला 2 घंटे कर लीजिए, बाकी 6 घंटे 8 घंटे आपको भक्तिमय सेवा करना है गुरु के आश्रम में, गुरु के मंदिर में। 64 माला वाले, हाँ, they would have got used to chanting faster. So even if they finish it in 7 hours, remaining 3 hours, they must engage in some devotional service. So what Prabhupada is telling is minimum. ऐसा नहीं कि हो गया माला टांग दिया अब हम अपना दिनचर्या करेंगे, मुझे जैसे चाहे वैसे जीऊंगा। नो, it is the minimum of the bhakti events that has to happen in your life. तो ये इसके होने के बाद आपको बाकी समय भक्ति सेवा में रहना है। So, so one should understand that birth, death, old age, and disease, janma, mrityu, jaravadi, dukkha, doshanu, darshanam. So, or what is it? What is intelligence? To know that from birth to death, all the events in material world is dukkha, dosha, anudarshanam. It's not that sometimes it happens. Anudarshanam everywhere and in anybody's life, we're able to see it. So unless we have this actual pessimistic view to material life, although it is a pessimistic view to material life, there is nothing optimistic for material life. क्यों? It is a losing battle. आप चाहे करोड़ों कमा लीजिए, सब कुछ यहाँ पे ही छोड़ के जाना है। तो क्या प्रभु जी हमें एम्बिशियस नहीं रहना है? You must be ambitious to the extent that is required. Your greater ambition should be to follow the spiritual path, to do well in the spiritual path, and not anything else. So, as for detachment from children, very important. All of you should listen to this. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को गलत तरीके के समझ लेते, या तो दे बिकम टू एक्सट्रीम इन ऑन दिस साइड or too extreme in the downward side. So it's very important to read Prabhupada's purport scrutinizingly and also take help of devotees who are following this process. So as for detachment, very important for grahasthas like me and you. As for detachment from children, wife, home, it is not meant that one should have no feeling for them.
इसका अर्थ है नहीं है कि वैराग्य मतलब ये नहीं है कि अच्छा मैं भगवत गीता अभी पढ़ रहा हूँ, हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहा हूँ, अब मुझे मत बीवी से मतलब नहीं है, बच्चों से मतलब नहीं है, नो, मेरे माँ बाप से मतलब नहीं है, नो, duty bound we are to play the role of a son, duty bound we are to play the role of a husband or a wife as the case may be, और कर्तव्यबद्ध है हम एक पिता या माता का रोल प्ले करने के लिए. So the child, he has come into this world, he is dependent on you, you must give him all the love. ऐसा नहीं वैराग्य हूं मैं प्यार करूंगा तो मैं बंधन में फंस जाऊंगा, नो. then why did you get married, why did you aspire for children? संन्यास ले लेंगे, संन्यास आप लेंगे गुरु के आदेश के बाद. संन्यास कैन बी ओनली टेकन आफ्टर द गुरु सेज यू कैन टेक संन्यास. एंड बहुत एक प्रभुपाद ने मना किया था that this age Kali Yuga is not meant for taking sannyas. If he authorizes only somebody very specifically, he says you take sannyas, then he would be able to take sannyas. And Prabhupada would have given ample engagement to the woman of that person, and और उनके बच्चों की जो व्यवस्था जो मिनिमम जो चाहिए था वो सब व्यवस्था वो करके फिर वो किसी को बोलते थे. इट वुड नॉट बी वेरी insensibly done. And what is required for the movement, अगर अगर इस हरे कृष्ण मूवमेंट के लिए अत्यावश्यक है, तभी प्रभुपाद जी बोलते थे. प्रभुपाद जी wanted that there should be some sannyasi phases in the starting phases of ISKCON, because he wanted to bring them to India. He wanted to show that here are the Western dancing white elephants, what Prabhupada used to call them. So क्योंकि पाश्चात्यकरण हो रहा था भारत देश में, तो ठीक है आप जो पाश्चात्य लोग करेंगे वही करेंगे ना. मैं उनको हरे कृष्ण मंत्र पे मैं नचाऊंगा, हर भक्ति में उनको लेके आऊंगा, हरे कृष्ण मंत्र उनसे जपा कराऊंगा, कुछ लोगों को सन्यासी बनाऊंगा, तब आप उनको देखे यू विल वांट टू डू लाइक देम, बिकॉज़ द इंडियन माइंडसेट वाज लाइक दैट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं वैराग्य हूं तो अभी मैं जो कामकाज में हूं उसको निर्लक्ष्य करो. you're employed somewhere or you're working for somebody, you cannot be neglectful. Neither can you neglect wife or husband, nor can you neglect children, nor can you neglect the work you're doing. But intelligently you have to manage, bring to a stage where, if you can bring yourself to a stage where money automatically is coming without you having to go out to work, and you can give a comfortable life to your family which is dependent on you, तब आप बाहर के काम से निकल के फिर पूरे भक्ति सेवा में आप आ सकते हैं. या फिर माता जी भी डिवोटी है, चाइल्ड भी डिवोटी है, आप भी डिवोटी हो और आप सबका सहमति है, फिर आप मंदिर के अथॉरिटीज को अप्रोच करके फिर आप पूर्ण तरीके से भक्ति सेवा में, मेकिंग श्योर ऑल ऑफ देम हैव गॉट एंगेजमेंट. दिस इज द वे टू कम, दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, नॉट whimsically. हाँ चलो, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान तो आ गया, वैराग्य मुझे लेके आना है, मैं लेके आऊंगा. आर्टिफिशियली इट कैनॉट बी बॉट. सो Prabhupada is giving, when you get initiated, there are certain things you have to follow, and there's a way of following it, not again whimsically. Husband is a devotee, wife is not a devotee, or wife is a partial devotee, newcomer to devotional service. Husband cannot force that person to, मैं जो कर रहा हूं आपको भी करना है, मैं नियम का पालन कर रहा हूं आपको भी करना है. No. He has to take that person into confidence. Till then, he has to give the person, husband or wife, all the comforts that a wife or husband should give to the other partner. Same thing with the child. That child, as Prabhupada says, especially devotee children, Vaikunta children, it's a duty bound to take care of them. Cannot be neglected. You have a role to play in society. ऐसा नहीं कि मुझे समाज से मतलब नहीं है. You have to be responsible citizens. So we must be role models for even the karmis. कि कोई कुछ बोलेगा तो कुछ भी बोलिए, लेकिन वो एक शासन भरित जीवन जी रहे, एक मार्गदर्शन के द्वारा
गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा वो अपना जीवन चला रहे हैं, एंड दे आर नॉट irresponsible, they are not neglectful. That is the impression that outsiders should get over devotee, because we represent Prabhupada and Krishna. वरना लोग क्या बोलेंगे, देखिए प्रभुपाद के डिसाइपल कैसे होते हैं, देखिए कृष्णा क्या 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 कराते हैं अपने डिवोटीज से, ये हो जाएगा. So, the best process for making the home pleasant is to be Krishna conscious and to try to make everyone Krishna conscious. मतलब हम खुद कृष्ण भावनामृत में आए और घर में बाकी लोगों को भी कृष्ण भावनामृत में आने के लिए प्रेरित करे. ऐसा नहीं कि प्रेत आत्मा की तरह उसका पीछे पड़ जाओ. इट इज नॉट गोइंग टू कम बाय फोर्स. भक्ति या भक्ति में जाने का ये जो टेंडेंसी है, दिस टेंडेंसी टू गेट इनटू डिवोशनल सर्विस विल नॉट कम बाय फोर्स. यू विल हैव टू टेक योर फैमिली मेंबर्स इनटू कॉन्फिडेंस. ऐसा नहीं कि आज से हम ऐसा करेंगे, ऐलान कर दिया कि आपको करना है, आप कर रहे हो. नो, इट इज नॉट दैट. देयरफॉर यू विल एनफोर्स इट ऑन अदर्स. यू हैव टू प्रीच एज द husband of the house. You must play the role of preacher. If the wife reverts, who is a devotee, she must play the role of a teacher to the child and to the husband, and be patient. इतना मैं बोल रही हूँ, सुन नहीं रहे हैं, जपा नहीं कर रहे हैं. या हस्बैंड इज टेलिंग, इतना मैं बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ मतलब शी इज नॉट कमिंग टू डिवोशनल सर्विस, छोड़ दूंगा उसको. नो, प्रभुपाद हैज नॉट अलाउड दिस. या बच्चे को बोलना चैंट करो, या उसको मारना कि ये बोल के चैंट करो. नो, यू मस्ट प्रीच टू द चाइल्ड टू द इन अ वे दैट द चाइल्ड हैज टू बी प्रीच्ड. ऐसा नहीं कि हैवी फिलोसफी आप डालेंगे. तो टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड यू हैव टू गो एंड प्रीच टू द चाइल्ड. Then only you should take them child in confidence and make them start with one round, maybe even 9 times, 9 beads you chant, then 18 beads you chant, 27 beads you chant. So child can be bought slowly like this. So you must use our intelligence. यहाँ पे हमें बुद्धि उपयोग करना है. So then Prabhupada comes to the point. जीवन में असल में सुखी होने के लिए या हमें प्रसन्न होने के लिए, खुश होने के लिए, आनंद में रहने के लिए 4 चीज की जरूरत है. Only 4 things that are required for one to be happy in your life. Now if you are thinking, अब प्रभुपाद जी हमें मैजिक फॉर्मूला बताएंगे, ये 4 चीज हम भौतिक जगत में पा लेंगे तो हम आध्यात्मिक खुशी पाएंगे. Okay, let's read what Prabhupada says. If one is in full Krishna consciousness, he can make his home very happy. पहला चीज टेलिंग, अगर कृष्ण भावनामृत का स्थिति में हम और अपने परिवार रहेंगे, वो घर परिवार वाले सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे. एंड दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी इजी. ये जो कृष्ण भावनामृत में रहने का जो प्रोसेस है, ये बहुत ही सुलभ प्रोसेस है. द प्रोसेस इज इजी, फॉलोइंग इट इज डिफिकल्ट. प्रोसेस तो इजी है, चैंट 16 राउंड्स और कुछ नियम पालन कीजिए और सेवा कीजिए. सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन उसको परिपालन करना ये मुश्किल है. बिकॉज एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. लाखों लाखों जन्म, करोड़ों जन्मों का हम कर्म का पूंजी, स्वभाव का पूंजी लेके आए हैं. ओवरनाइट इट्स नॉट गोइंग टू चेंज unless Guru and Krishna causelessly bless. Nothing is going to happen. For that we have to keep begging. So Prabhupada says here, one need only chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. पहला requirement है. Next, accept the remnants of food stuff offered to Krishna. Food for the mind, पहला, and the soul, that is Hare Krishna on the chanting. Then there is also food for the body, mind and soul. Remnants of foodstuff offered to Krishna. Krishna Prasada. Hare Krishna Japa, Krishna Prasada. तीसरा, have some discussion on books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. तो भगवत गीता को पढ़ना, भगवत गीता को सामूहिक रूप से पढ़ना, फैमिली मेंबर्स सिटिंग टुगेदर, इंडिविजुअली सिटिंग,
and doing and attending sessions, Bhagavad Gita sessions in temple or online sessions like this from bona fide sources. Fourth one, to engage oneself in deity worship. Sri Murtera Sevana. Bhagavad, जो what do we call the deities of the house or the temple, उनका पूजा करना. So ये चार, these are the four things required to be actually happy. If our definition of happiness is something else, crooked version, then no material happiness is going to be permanent. No material happiness is actually going to give us happiness. क्योंकि हम सोचते जाएंगे ये पा लूंगा तो खुश रह जाऊंगा, फिर जिंदगी में वो आएगा, फिर आपको फिर कुछ खोखलापन महसूस होगा, नहीं कुछ तो मिसिंग है, ऐसे हमें आभास होगा, फिर हम किसी और चीज के पीछे भागेंगे, देन वी विल रन आफ्टर समथिंग एल्स. तो ये भागना भागना भागना, दिस इज माया डैंगलिंग द कैरेट. गधे को आगे से एक गाजर को ऐसे टांग दिया और वो गधा उसके पीछे भाग रहा है. So now, is it wrong that we aspire to become wealthy? Is it wrong that we aspire to have a good house? Is it wrong to aspire to have a good family? Nothing is wrong. As long as you know what is good family, as long as you know how much wealth is good wealth, वरना उसका कोई अंत है ही नहीं. If you tell today धीरूभाई अंबानी कि आप संतुष्ट हो, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर ही में गिव इज नहीं, और भी कमाना है. आपके पास इतने करोड़ों हैं, क्यों ना आप सब बंद करके हरे कृष्णा मंत्र जपा करो. ही कैन डू इट, बट दे विल नॉट डू इट, बिकॉज देयर इज अ मिसिंग लिंक समवेयर, एंड दैट गुरु का प्रेरणा और आशीर्वाद से ही आएगा. एंड दैट डजंट मीन दैट ओनली बाय लिविंग ऑल दिस यू कैन बिकम अ डिवोटी. अनदर एग्जांपल, एल्फ्रेड फोर्ड, अम्बरीश दासा, प्रभुपाद के डिसाइपल हैं. तो वो आज भी फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं और वो भक्त भी है. ही इज वन ऑफ वेरी गुड डिवोटीज, एंड इज contributing his dovetailing his profits, percentage of his profits to the construction of the great Mayapur Chandrodaya Mandir. That's another example of a devotee. Then we have many IIT graduates who have joined ISKCON temples, knowing the value of spiritual life. So we have this kind of people also, we have that kind of a people also. So we should know whom to make our role models. अगर आप समझ रहे थे अच्छा आज का क्लास 4 things that will make me happy, तो कुछ रहेगा, कुछ तो रहेगा. ये 4 चीज हम सुन लेंगे और पा लेंगे तो हम खुश रहेंगे. एक्चुअली आपको सही मायने से it has been mentioned here which are the 4 things which if you have in your life you will really be happy. What are those? Chanting Hare Krishna mantra. Next, eating Krishna prasadam only. कृष्ण प्रसाद को ही सेवन करना. थर्ड, always discussing books, reading books, discussing books, attending classes about Srila Prabhupada's books, like Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and many other books that he has written. Like in our Krishna Live session, Sunday sessions, now what is going on? Nectar of instructions. कुछ लोग तो आ रहे, कुछ लोग are taking it now casually. They think that Sunday session is not very much important. Both online we see lesser number of people attending, and offline also lesser number of people attending. वो जो रूटीन से जब बन जाता है, then that is a danger. If we lose the knowledge of why we are doing something, why Krishna live session, why Sunday session, why this session in the night today, if we don't know why, then there is no motive for us to do things. So we must be very very careful. संडे एक ही दिन तो मिलता है प्रभु, आप उस दिन भी कृष्णा लाइव सेशन रख देते हो. मंडे हम रखेंगे तो कितने लोग आ पाएंगे? प्रैक्टिकली स्पीकिंग सैटरडे हम रखेंगे तो कितने लोग आ पाएंगे? तो संडे इज द बेस्ट डे टू हैव इट, एंड संडे दिस इज द वे टू स्पेंड, नॉट द वे यू नो. संडे मतलब लेजी रहना, बेड से 9 बजे उठना, बेड में ही बेड कॉफी पीना, हो सके तो वहीं पे कल का डिनर थोड़ा फ्रेश कर मतलब बचा के रखना और वही ब्रेकफास्ट में खाना. दैट इज तामसिक टेंडेंसी. दैट इज नॉट व्हाट इज रिकमेंडेड बाय
our shastra, and that will not make us happy. तो हम जो सोच रहे हैं कि हाँ ये आज ना आलस करके बहुत मजा आ गया, that आलस is going to cost us very dearly if it becomes a habit. So one should train the family members in this way. They must have this. Fourth, it's the responsibility of husband. It's also the responsibility of wife if she is a devotee. It's the responsibility of the father. It's the responsibility of the son also, to keep all of them integrated in Krishna consciousness. So these four will make one happy. Now Prabhupada ने बोल दिया ये golden words है. सच में हमें हम अगर खुश रहना है, आनंद में रहना है, so that is, we must have these four things in our life. Along with this, you want to pursue other things, you pursue, but it should not take precedence over these four things. Bhakti seva, have to serve spiritual master and the Lord in devotional service. That is the highest goal of human life, and that's the highest thing to achieve in human life. And till we achieve pure devotional service, we can continue to do devotional service. So one must sacrifice everything to realize or serve Krishna, just as Arjuna did. अगर हम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय हमें थोड़ा टीवी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बाहर जाना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एंड यू शुड ट्राई टू कीप इन गुड शेप हेल्दी, सो बाहर ज्यादा खाने का अवॉइड करने का, यू डोंट वांट टू फॉल सिक. When somebody is preparing for IIT, UPSC, many other major exams, NEET exams after 12th, so they all take up this austerity, is it not? It is not actually an austerity, this is intelligence. अब इस समय मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है और इसके लिए मुझे I must take care of myself mentally, spiritually and bodily also. बॉडी का भी देखभाल करना है. We should exercise and be in good peak form. We should also be mentally strong and we should be prepared. More than anything, we should be prepared, do what is required. We should also be spiritually strong. सब कुछ हमने कर दिया, दैव बला नहीं है तो नहीं होगा. दैव बला पे ही हम निर्भर होंगे, हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, वो भी नहीं होगा. सो इन दी दामोदर लीला हम ये सीखते हैं क्या है, वो दो उंगलियों का फर्क, वो तो यशोदा के लिए तो लागू नहीं था. यशोदा के लिए तो वो एक लीला था, भगवान ने रचाया. लेकिन हम भक्तों के लिए, अगर हमें भगवान को हमारे प्रेम से बांधना है तो पहले तो प्रेम रहना है. सो एक तो प्रेम होना चाहिए, भक्ति का प्रेम होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, परिश्रम. ये दो उंगलियां, या तो भक्ति रहेगा, सेंटिमेंटल ही विल बी, और ही विल बी भक्त बट विल नॉट डू एनीथिंग, डिवोशनल सर्विस विल नॉट डू, परिश्रम नहीं करेगा, तो फिर he will not be able to bind Krishna with his love. काम कर रहा है, काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन प्रेम नहीं है, फिर भी वो डेफिशिएंसी है. तो जब तक भक्ति का प्रेम और भक्ति का सेवा ये दोनों हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे, तब तक हमें कृष्णा नहीं मिलेंगे. हम कृष्णा को बांध नहीं पाएंगे अपने जीवन में, अपने जिंदगी में, अपने प्रेम से. So, in this world, one can never be fully happy or fully miserable if he is going to be dependent on material facilities. Material facilities जिस चीजों के लिए चाहिए, जितने मात्रा में चाहिए, वो मात्रा में हमें लेना चाहिए. But not that becomes the main focus of life. तो वही हमारा जीवन का लक्ष्य बन गया, फिर हम पतन के मार्ग पे जा रहे हैं. So if you are actually in spiritual position, these things will not agitate us. The material ups and downs, वो हमें विचलित नहीं करे, क्योंकि हमें पता है कि हम किस लक्ष्य के ओर हम जा रहे हैं. To reach that stage, we have to practice unbreakable, unalloyed devotional service. Of course, till we get unalloyed devotional service, Shuddha Prema Bhakti, till then unbreakable service should happen. Bits and pieces में भी हमें नहीं करना. Regular, there should be some regularity. Daily this many hours I will do service. Daily this much time I will read. Then mean this much time I will hear the proper lecture. Daily this much time at this time. This much time and at this time I will chant. इस समय में और इतने समय तक मैं जपा करूंगा, इतने माला मैं करूंगा. संख्या पूर्वक नाम गान नति भी.
तो भक्ति में जो भी हमें कार्य करना है इस वक्त वैदिक भक्त में संख्या पूर्वक, वी मस्ट बी अकाउंटेबल, हमें काउंट करके करना चाहिए। आज मैं, दैट्स व्हाई प्रभुपाद इज गिवन अ मैंडेट, दैट्स व्हाई योर प्रीचर इज गिविंग मैंडेट। डेली आपको इतना पढ़ना चाहिए, डेली आपको एक लेक्चर सुनना चाहिए प्रभुपाद का, और डेली आपको इतना माला इस वक्त आपको इस स्टेज में करना चाहिए। तो अगर इफ यू थिंक ये सब रिचुअल्स है, इज आर नॉट रिचुअल्स, बट इफ वी डोंट हैव लव फॉर कृष्णा ये रिचुअल बन जाएगा। फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले क्वांटिटी, पहले रिचुअल की तरह ही कर लो। रिचुअल की तरह करते करते पीलिया के जो पेशेंट हैं, मीठा मीठा मिश्री खा खा के अभी उसको कड़वा लग रहा है, लेकिन वही मीठे मिश्री से वो गुणमुख होगा और धीरे धीरे उसको रुचि भी आएगा। ठीक वैसे ही हमें आज इस वक्त आध्यात्मिक पीलिया है, रुचि नहीं है, तो इसलिए हमें नियम के अनुसार करना चाहिए, बस करते रहना चाहिए। प्रभु कोई रुचि नहीं है क्यों जपा करते करवाते हो, कोई रुचि नहीं है सेवा करो बोलते हो, ये करने से ही आपका आध्यात्मिक पीलिया मिटेगा। फिर आपको धीरे धीरे जब रुचि आएगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद आएंगे सेवा करने के लिए, आप खुद बुक उठा के पढ़ेंगे, आप खुद लेक्चर सुनेंगे, आप खुद जपा करेंगे ब्रह्म मुहूर्ता के टाइम में। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मंगल आरती आओ, फिर जपा करो मंदिर में, कोशिश करो, जितना हो सकता है उतना तो कर लो। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इवन इफ यू कम फॉर फ्यू मंगल आरतीज पर वीक, and even if you're able to do 1 or 2 rounds per day, when you come and then go, that's going to do a lot of good for you in your spiritual progress. प्रभु जी हम तो दूर रहते हैं, वी आर नॉट इन द लोकल टेम्पल, हमें एक्सेसिबल नहीं है, और आजकल ऑनलाइन हम देख सकते हैं, ऑनलाइन मंगलारती अटेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रभु मंगलारती हम 8 बजे ही दे सकते हैं, बिकॉज वो तो रहेगा वहीं पे, दैट्स नॉट अ पर्पस। 4:30 मंगल आरती है, 4:30 आप अटेंड कीजिए, ऐसा नहीं अच्छा घर में अटेंड कर रहे हैं, सीधा बेड से उठ लिए और कर लिए, ठीक है, इनिशियली इट इज ओके, शुड नॉट मेक दैट वन हैबिट। यू शुड गेट अप, टेक बाथ एंड सिट डाउन एंड वॉच आफ्टर वेयरिंग तिलक एंड ऑल, एज दो यू आर वॉचिंग इन द टेम्पल। जब ये सीरियसनेस आएगा, कृष्णा विल मेक ऑल फैसिलिटीज, कृष्णा विल गिव अस द प्रॉक्सिमिटी एंड द एक्सेस वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। सो मंदिर से दूर रहेंगे और सेशन रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तो हमारा जो फैसिलिटीज है आध्यात्मिक प्रगति का वो कम हो गया। वेयर देयर इज कृष्णा देयर इट इज वृंदावन। तो आप अपने घर को वृंदावन बना सकते हो, कैसे? फॉलोइंग द 4 थिंग्स और द अदर थिंग्स दैट प्रभुपाद हैज टोल्ड। बाकी हमारे ऊपर है। So one may test himself by seeing how far he is inclined to live in a solitary place without unwanted association. तो भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हम एकांत में भी रहेंगे फिर उल्टा सीधा सोच ही आएगा, सीधा सोच कम आएगा, उल्टा सोच ही ज्यादा आएगा। सो डूइंग philosophical research on Bhagavad Gita will not have any value. अब आपने भगवत गीता को भगवान श्री कृष्णा को भगवान मान लिया है, प्रभुपाद को गुरु मान लिया है, then whatever is being told यही आपके लिए वेद वाक्य, इनफैक्ट इट इज वेद वाक्य, and we must follow this. So भगवान is the last word in realization of absolute truth, और उसको पाने के लिए हमें परिश्रम और प्रेममय भक्ति पाने की कोशिश करना चाहिए। So we finished discussing the 12th shloka also. From the next session, that's tomorrow, we'll start with shloka number 13 and onwards. So to rebellion against Supreme Lord, one becomes subordinate material nature. क्यों माया के जंगल में हैं अभी हम? क्योंकि हम कृष्णा से विमुख हो गए हैं। कृष्ण बोलिए जीवा भोग वांछा करे, पाशाते माया झपटिया धरे। So thank you very much for joining me today. We'll meet again tomorrow.